کربلا ایک ایسا عظیم انقلاب جس کی وجہ سے دنیا کی کئی بڑی اور طاقتور حکومتیں تک الٹ گئیں، جیسے کہ ایران اور شام۔ لیکن آخر یہ کربلا کا واقعہ ہوا کیسے اور کس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اس انقلاب کا آغاز ہوا؟ بات اس وقت کی ہے جب معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے معاہدے کو توڑ کر اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ اپنی موت سے پہلے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خبردار کیا، حسین سے ہوشیار رہنا، اگر یہ تیرے خلاف کھڑا ہوا تو تو نہیں بچے گا۔ یزید یہ بات بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ حسین کی بیعت لینا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یزید نے امام حسین علیہ السلام سے اپنی بیعت کا مطالبہ کیا۔ لیکن نواسہ رسول اس ظالم حاکم کے آگے کیسے جھک سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ جب یہ خبر عراق کے شہر کوفہ پہنچی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے لوگوں میں ایک امید کی کرن جاگی۔ کوفہ پہلے بھی خلیفہ وقت حضرت علی علیہ السلام کا دارالخلافہ رہ چکا تھا، اس لیے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے بہت بڑی تعداد میں موجود تھے۔ کوفہ کے بڑے بڑے سرداروں اور عام لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھنا شروع کیے۔ 1 2 10 نہیں بلکہ ہزاروں خطوط مکہ پہنچے۔ ان خطوط میں لکھا تھا کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم آپ کی قیادت میں حق کی جنگ لڑیں گے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے سب سے بھروسے مند، بہادر اور عاقل چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں کوفہ بھیج رہا ہوں، وہاں جاؤ، حالات کا جائزہ لو۔ اگر تم دیکھو کہ کوفہ کے سردار اور عام لوگ اپنے خطوط پر قائم ہیں تو مجھے فوراً اطلاع دینا تاکہ میں مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو سکوں۔ لوگوں کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کے سفیر آ گئے ہیں تو پورا کوفہ استقبال کے لیے امڑ آیا۔ مختلف روایات کے مطابق صرف چند ہی دنوں میں 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم علیہ السلام کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا کہ کوفہ کے حالات بالکل تیار ہیں، آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ شام میں بیٹھا یزید کوفہ کی اس بغاوت کو دبانے کے لیے ایک بہت ہی ظالم اور مکار شخص کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ شام سے ایک حکم نامہ نکلتا ہے اور کوفہ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یزید نے بصرہ کے ظالم حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ ابن زیاد ایک انتہائی مکار، چالاک اور بے رحم انسان تھا جو اچھی طرح جانتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں خوف اور لالچ کیسے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ کوفہ میں اتنے چپکے سے داخل ہوا کہ عام لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ اس نے سیاہ رنگ کا نقاب اوڑھا ہوا تھا تاکہ لوگ اسے امام حسین علیہ السلام سمجھ بیٹھے۔ کوفہ کے لوگ اتنے بے چین تھے کہ وہ دوڑے دوڑے آئے اور خوشی سے نعرے لگانے لگے کہ لیکن جب یہ قافلہ دارالعمارہ یعنی گورنر ہاؤس پہنچا تو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ نواسہ رسول نہیں بلکہ موت کا دوسرا نام عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد نے کوفہ کی حکومت سنبھالتے ہی اپنا مکارانہ کھیل شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے کوفہ کے بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کو مخفی طور پر گورنر ہاؤس بلایا۔ اس نے ان سرداروں کے سامنے 2 ہی راستے رکھے، ایک طرف بہت بڑی دولت، جاگیریں اور عہدے تھے، اور دوسری طرف بے رحم موت اور شام کے شاہی لشکر کا خوف۔ اس نے دھمکی دی، یزید کا ایک بہت بڑا لشکر شام سے روانہ ہو چکا ہے، اور جس نے بھی مسلم کا ساتھ دیا اس کی نسلیں مٹا دی جائیں گی۔ یہ سن کر کوفہ کے خود غرض سرداروں کے ایمان ڈگمگا گئے۔
वो दौलत की लालच और जान के डर से इमाम अलैहिस्सलाम के सफीर को तन्हा छोड़ने पर तैयार हो गए। इन सरदारों ने गवर्नर हाउस से निकलकर अपने अपने कबीले के लोगों को डराना शुरू किया। अपने मर्दों को मुस्लिम के लश्कर में शामिल मत होने दो और उनकी हिफाजत करो दा। और हजरत मुस्लिम अलैहि अस्सलाम चारों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आ चुके थे। आप शदीद जख्मी हो चुके थे, आपके होंठ कट चुके थे और दांत टूट चुके थे। इस मजलूमियत के हाल में आपको गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्न जियाद के सामने दारवाल इमारा लाया गया। इब्न जियाद ने बेरहमी की तमाम हदें पार कर दी। उसने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम को दारवाल इमारा की सबसे ऊंची छत पर ले जाने का हुक्म दिया। आपको जख्मी हाल में छत पर लाया गया, जहां से पूरा कूफा साफ नजर आ रहा था। आपने मक्का मुअज्जमा की तरफ रुख किया, जहां इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मकदस काफिला रास्ते में था, और बड़े दर्द से पुकारा, अस्सलामु अलैका या अब्ना रसूलिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल के बेटे, मेरा सलाम कबूल कीजिए। उसी वक्त जल्लाद की तलवार चली और नुज़ी अल हिज्जा 60 हिजरी को करबला की ये पहली अजीम कुर्बानी मुकम्मल हो गई। हजरत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम का सर अनवर कलम करके नीचे फेंक दिया गया और आपके जसद खाकी को महल की छत से गिरा दिया गया। दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इस वक्त तक अपने खानदान के साथ मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। वो पिछले कई महीनों से मक्का में ठहरे हुए थे और हज के मौका पर हजारों मुसलमान उनके पास आकर उनका साथ देने का वादा कर रहे थे। जब यजीद को इस बात की खबर हुई तो उसने अपने कुछ कातिलों को हाजियों के रूप में इहराम की हालत में भेजा, ताकि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साजिश का इल्म हुआ कि यजीद ने काबा की हुर्मत पामाल करने के लिए अपने जासूस भेजे हैं, तो उन्होंने मक्का की हुर्मत बचाने के लिए हज को उम्रे में बदल दिया और मक्का छोड़ने का तारीखी फैसला किया। मक्का से रवाना होने से पहले ऐसा अजीम खुतबा दिया और फरमाया, बड़ी और जो हमारा साथ देगा वो शहीद होगा, जैसे कि और जो पीछे रह जाएगा लेकिन आखिर कभी भी उस अजीम कामयाबी को हासिल नहीं कर सकेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का आगाज काफिले के साथ कूफा की तरफ निकल मुआविया ने, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ होने वाले मुआहिदे ने जियाद मुकम्मल अपने बेटे यजीद को खलीफा मुकर्रर वाले गद्दारी कर चुके। मौत से पहले चाहने वालों ने उन्हें बेटे यजीद जाने से मना भी किया, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तकरीबन 70 से 80 लोगों के मुख्तसर काफिले के साथ कूफा की तरफ रवाना हो गए। वो किसी जंग के लिए नहीं जा रहे थे, अच्छी तरह जानता था अपने खानदान और बच्चों के साथ सबसे ज्यादा जरूरत पर और यजीद मिलने जा रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से काफिला रेगिस्तान के मुसाफिर पर गामजन था कि अचानक रास्ते में ही रसूल ने एक बहुत जालिम दर्दनाक खबर मिली। ये खबर मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम की शहादत ने वाज़ेह खबर सुनते ही काफिले में गम की लहर दौड़ गई। यजीद के साथियों के हौसले नहीं करने लगे। कुछ लोगों ने पीछे हट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा इमाम हुसैन मक्का अलैहिस्सलाम ने उन्हें मुखातिब करके फरमाया के शहर कूफा पहुंची कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया है। तो कूफा के लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी। कूफा पहले भी ये काफिला एक बार फिर पूरे अज़्म के साथ सलाम का दारुल खिलाफा रह चुका था। इस सफर के दौरान अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले काफिले ने बहुत बड़ी तादाद में मौजूद और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सो रहे थे। आम लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नाना खुद अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजारों खतूत मक्का। नाना ने अपने नवासे से फरमाया में लिखा था कि हमारा कोई इमाम आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हें शहीद देखना चाहता है। हम जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से बीदार हुए इमाम हुसैन तो उन्होंने अपने बावफा साथियों से ये ख्वाब बयान किया और ऐलान किया कि चचाजाद भाई अब जो वापस जाना चाहता है वो चला जाए, क्योंकि अब जो मेरे साथ रहेगा वो यकीनन मारा जाएगा। हजरत मुस्लिम दुनियादार लोग काफिला छोड़कर चले गए कि मैं लेकिन जो सच्चे आशिक थे वो अपने इमाम हालात का जायजा रहे और ये काफिला देखकर से कूफा के सरदार और आम लोग रवाना हो गए। खुतूत सफर मजीद आगे बढ़ा तो मुझे रास्ते में इत्तला देना और काफिला में मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो सकूं। राज़ी अल्लाह अन्हु जैसे ही मालूम हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफीर आ गए हैं
इस इंतहाई मुख्तसर लेकिन रूहानी मुलाकात के बाद मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक की दुनिया ही बदल ही दिनों में उन्होंने 18,000 से ज्यादा लोगों को तलाक दे दी और उससे कहा कि तुम बाकी सब लोगों के साथ हुसैन अलैहिस्सलाम चली बैत कर ली, क्योंकि मैं और उन्होंने हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा जान कुर्बान के हालात बिल्कुल तैयार वो मंजिल थी जहाँ दुनिया के रिश्ते इस बात से बेखबर थे। वहीं दूसरी तरफ यजीद कूफा की इस मुकम्मल दबाने के लिए एक बहुत ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा भेजने का फैसला रवाना हो चुके हैं। शाम से एक नापाक नामा निकलता है और बिन यजीद को एक तजार के भारी लश्कर के साथ यजीद ने बसरा के जालिम हाकिम अलैहिस्सलाम के काफिले को रास्ते में ही रोकने के लिए गवर्नर मुकर्रर कर यजीद ने अपने बड़े लश्कर के साथ इंतहाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले का रास्ता काट लिया और अच्छी दरियाए फुरात के किनारे में खौफ और लालच के स्थान में आगे बढ़ने से रोक दिया। में इतने चुपके से दाखिल हुआ कि आम तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों स्याह रंग का निकाब कौन सी जगह है था। लोगों ने जवाब दिया कि इमाम हुसैन, ये नाम सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लोग इतने बेचैन थे और आप दौड़े दौड़े आए और खुशी से नारे लगाने लगे कि हमारा खून बहाया जाएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दारवाले मारा यानी गवर्नर हाउस पहुंचा, हम आगे तो उसने अपने चेहरे से बिल्कुल वही जगह थी जहां से जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जंग सिफ़ीन से लौट तले से जमीन निकल तो आपने यही फरमाया था कि ए हुसैन, बल्कि उस दिन सब्र करना जिस दिन तुम्हारा बाप इब्न ज़ियाद मदद के लिए तुम्हारे पास नहीं होगा। तुम करबला की जमीन पर सब्र करना क्योंकि वहां तुम्हें अकेले मौत का सामना करना पड़ेगा। पहले कूफा जब बड़े मुहर्रम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जाननिसार गवर्नर साथियों ने करबला में खैमे सरदारों के सामने दो ही रास्ते यजीद ने 4,000 के मजीद लश्कर के साथ और उमर बिन साद को दूसरी तरफ बिन यजीद की फौज के साथ मिलने के लिए लश्कर का खौफ। इससे दुश्मन की फौज और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा भी उमर बिन साद यजीद से लगातार और ज्यादा लश्कर मंगवाता रहा, जिसके बाद उस जालिम की फौज तकरीबन 30,000 तक पहुंच गई। वहीं दूसरी तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनके सिर्फ 72 साथी थे, लेकिन आखिर केवल उमर बिन साद इतनी ज्यादा फौज मंगवा रहा था जबकि सामने सिर्फ 72 लोग थे और उनमें से भी कई मासूम बच्चे और औरतें थीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि इन 72 लोगों में एक ऐसा इंसान मौजूद था जिसका नाम अब्बास था। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे। वो इतने बहादुर और शुजा थे कि जब वो जंग में लड़ते थे तो लोगों को यही लगता था कि जैसे खुद अली लड़ रहे हों। उन्हें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की नमाज में अल्लाह से मांगा था। आपने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा बेटा अता फरमा जो मेरे बेटे हुसैन को उसकी तन्हाई के दिन सहारा दे। मुझे ऐसा बच्चा अता कर जो हुसैन का वफादार हो, जो करबला के मैदान में उसके साथ खड़ा हो, जो उसके लिए अपनी जान दे और मौत के सामने कभी न झुके। तब जाकर अल्लाह ने उन्हें अब्बास जैसा बेटा दिया था। इसी वजह से उमर बिन साद मुसलसल फौज मंगवा रहा था, क्योंकि उसके सामने हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम चट्टान बनकर खड़े थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा के लोगों को एक खत लिखा ताकि उन्हें अपनी इस मजलूम हालत के बारे में बताएं, लेकिन वो खत कभी कूफा के दहूकेबाज लोगों तक पहुंच ही नहीं सका। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी शदीद प्यास बर्दाश्त कर रहे थे कि उनके साथ मुहर्रम को उमर बिन साद ने 500 फौजी दरियाए फुरात के किनारे खड़े कर दिए थे ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम तक पानी का एक कतरा भी न पहुंच सके। इस वक्त रेगिस्तान में शदीद तरीन गर्मी थी। तपता हुआ सूरज सर पर था। मासूम बच्चे प्यास से बिलक रहे थे और उनके होंठ सूख कर कांटा हो चुके थे। यहीं तक कि औरतें प्यास की शिद्दत से बेहोश हो रही थीं। प्यास की वजह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथी जिस्मानी तौर पर कमजोर हो रहे थे, लेकिन उनका जज्बा इतना ही मजबूत था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम पहले ही शदीद बीमार थे। बीबी सकीना अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आकर बार बार पूछ रही थी कि बाबा पानी कहाँ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मनों को पैगाम भेजा, तुम्हें मुझसे दुश्मनी है तो इन मासूम बच्चों और औरत पानी पीने दो
आखिर इनका क्या कसूर है? लेकिन उनका आगे से बेरहम जवाब आया कि हमें उबैदुल्लाह इब्न जियाद ने सख्त हुक्म दिया है कि इन्हें पानी का एक कतरा तक नहीं देना। अगले दिन 8 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन जालिमों की सिर्फ एक ही मांग थी कि यजीद की बैअत कर लो, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे। प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। खून गाढ़ा होने की वजह से जिस्म को पंप करने में शदीद मुश्किल हो रही थी। दिमागी सलाहियतें जवाब दे रही थीं और ये सब तकलीफें उन मासूम बच्चों में और भी ज्यादा बढ़ गई थी। रोने वालों की सस्कियों में दर्द की सदा